الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، شریعت نے حج اور عمرہ کے لیے کچھ مواقیت یعنی کچھ جگہوں کو مقرر کیا ہے۔ ایک شخص جو حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے، اس میقات سے پہلے احرام باندھنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ایسے ہی ایک مواقیت زمانیہ ہے، یہ ہے مواقیت مکانیہ، اور ایک دوسرا ہے مواقیت زمانیہ، یعنی شریعت نے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں حج کے لیے، اور حج کا ارادہ صرف انہی مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو زمانہ یا وقت ہے شوال اور ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ، یعنی یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کے ایام یہ حج کے ایام ہے، اس کو اشہر الحج کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کے لیے اس مواقیت پر پہنچے تو حج کی نیت کر سکتا ہے، اس سے پہلے حج کی نیت وہ مواقیت پر اگر پہنچ جائے تو نہیں کر سکتا ہے۔ المہم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو اشہر الحج ہے شوال ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ، اس میں جو 10 ذی الحجہ ہے یہ سال کے سب سے بہتر اور افضل ایام ہیں۔ جس طرح کی سال کے 360 راتوں میں سب سے بہتر اور افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، تو دن کے اعتبار سے 10 ذی الحجہ کے ایام سال میں سب سے بہتر اور افضل دن ہیں۔ اور جس طرح کی سال کی ان 10 راتوں میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو ایسے ہی یہ 10 ذی الحجہ کے ایام میں ایک دن ہے جو یوم عرفہ ہے، جس دن اگر غیر حاجی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے یعنی 2 سالوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ایسے ہی حجاج بیت اللہ الحرام کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جس طرح آخری 10 رمضان کی راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو رات کی تمام یا سال کی تمام راتوں میں سب سے بہتر اور افضل رات ہے، تو ایسے ہی یہ 10 ذی الحجہ کے ایام میں یوم النحر ہے، یوم الحج الاکبر ہے، قربانی کا دن ہے، بقر عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جو سال کے تمام ایام میں سب سے بہتر اور افضل دن ہے۔ جس طرح کی ابن حبان نے روایت کی عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، کہ سال کے سب سے بہتر اور افضل دن یہ بقر عید کے دن ہے، یوم النحر ہے، پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن ہے، اول ایام التشریق کا دن ہے، جس دن حجاج بیت اللہ الحرام مینا میں ہوتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں۔ اور جس طرح کی شریعت کی ابتدا وحی کا نزول ہجرت سے 13 سال پہلے 21 رمضان میں یا 21 رات میں
शुरू हुई तो ऐसे ही शरीयत की तकमील ये 10 दिलहिज्जा के अय्याम और बितहदीद 9 दिलहिज्जा सन 10 हिजरी में मुकम्मल हुई। अल्लाह अकबर। ये 10 दिलहिज्जा के जो अय्याम हैं ये बरकत वाले दिन हैं, ये साल के सबसे अफजल और बेहतर अय्याम और दिन हैं। सभी को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएं, चाहे हज के लिए वो मशाइर मुक़द्दसा पहुँच रहे हैं या हज के लिए नहीं जा रहे, जहाँ कहीं हैं वहाँ अल्लाह की इबादत करें और 10 दिलहिज्जा के अय्याम से भरपूरा फायदा उठाएं। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने हदीसें बयान कर रहा हूं जिससे बात वाज़ेह हो रही है कि इन दिनों की कितनी फजीलतें हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सहीह में रिवायत की है और ऐसे ही अबू दाऊद ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजाह ने और ऐसे इमाम अहमद ने अपनी किताब अल मुस्नद में, ऐसे ही अद्दारिमी ने भी अपनी किताब सुनन में रिवायत की है सईद इब्न जुबैर से, जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन हाज़िहिल अय्याम यानी 10 दिलहिज्जा। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल के पूरे दिनों में सबसे बेहतर और अफजल दिन ये 10 दिलहिज्जा के दिन है। इन दिनों में अल्लाह ताला को इबादत इंतहाई पसंद है। सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, इन दिनों में इबादत करना अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इन दिनों में इबादत करना अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी बेहतर और अफजल है। फिर आपने कहा, सिवाय वो आदमी जो अपने मालो जान के साथ निकला अल्लाह की राह में, फिर माल भी गया और उसकी जान भी गई, तो इसका और ऊंचा मकाम और रुतबा है। एक दूसरी हदीस जिसकी रिवायत इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में की है इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, जो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़ल अल-अय्याम इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल या मा मिन अय्याम अफ़ज़ल इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल वला अहब्बु इलैहि मिन अल-अमल फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहि अल-अय्याम अल-अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बेहतर और अफजल दिन ये 10 दिलहिज्जा के दिन है। इन दिनों में अल्लाह ताला को इबादत इंतहाई पसंद और इंतहाई महबूब है। तो इन दिनों में बकसरत तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तकबीर अल्लाहु अकबर कहो, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। वाजिबुल एहतराम भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये 10 दिलहिज्जा के अय्याम के फ़ज़ाइल हैं हदीसों में। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन 10 दिलहिज्जा के अय्याम की कसम खाई ताकि इसकी अज़मत, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत ज़ाहिर हो। फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने, वल फज्र व लयालिन अश्र, यानी फज्र की कसम, सुबह की कसम और 10 दिलहिज्जा के अय्याम की कसम। ये 10 दिलहिज्जा के जो अय्याम हैं, इब्न कसीर रहमहुल्लाह और इनके अलावा और मुफस्सिरीन ने ये राजिह करार दिया कि इससे मुराद 10 दिलहिज्जा के अय्याम हैं, 10 दिलहिज्जा के अय्याम हैं। भाइयों और मुहतरम साथियों, अल्लाह ताला ने इन अय्याम की कसम खाई है और ऐसे ही कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पर सूरतुल हज आयत नंबर 28 में फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने, वयज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह ताला का ये जिक्र करे वो मालूमात अय्याम में, वो जो मालूम दिन है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अल-अय्यामुल मालूमात 10 दिलहिज्जा वल अय्यामुल मादूदात अय्यामुत तशरीक़, कि अल-अय्यामुल मालूमात से मुराद जो इस आयत करीमा में जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया, इससे मुराद 10 दिलहिज्जा के अय्याम है। और अय्याम मादूदात जो सूरत अल-बकरा की एक आयत में है, उससे मुराद अय्यामुत तशरीक़। भाइयों और बहनों,
जो इस हदीस के इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो हदीस गुजरी और हमने सुनाई, जो इसके रावी सईद इब्न जुबैर हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के शागिर्द हैं, इन दिनों में इतनी इबादत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, आमाल सालिहा में सबकत हासिल करते थे कि उनकी तरह इस तरह इबादत करना नामुमकिन हो जाता था। इब्न हजर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-फतह में सबब बयान करते हैं कि क्यों ये ऊंचा मकाम और दर्जा 10 दिल-हिज्जा के अय्याम है। तो कहते हैं लिज्तिमाई उम्महातिल इबादाति फीहिन्ना व हिय अस्सलात व अस्सौम वस्सदक़ह वल-हज वला यतअत्ता ज़ालिका फी ग़ैरि हादिहिल अय्याम। उसकी वजह यह है कि इन दिनों में अजीम अजीम इबादतें और अहम अहम इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं जो और दिनों में नहीं होती हैं, ना एक साथ इस तरह जमा होती हैं। यानी इसमें नमाजें हैं, फिर ऐसे ही सियाम है, रोज़ा है, और ऐसे ही सदका करना है, और ऐसे ही अल्लाह के लिए हज करना। तो इस तरह ये चारों इबादतें एक साथ इकट्ठा नहीं होती सिवाय 10 दिल-हिज्जा के अय्याम में, इसीलिए इसका ऊंचा मकाम और रुतबा हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भी चाहिए कि हमें 10 दिल-हिज्जा में आमाल सालिहा में सबकत हासिल करें, और लोगों की तरह, और जो लोग गाफिल रहते हैं इन दिनों में, उनकी तरह हमें भी गाफिल नहीं होना चाहिए। ये मुबारक अय्याम है, ये अफजल अय्याम है। इन दिनों में इबादत अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद और महबूब है। मुख्तलिफ किस्म की इबादतों में हम सबकत हासिल करें, नमाजों का एहतमाम करें, फर्ज नमाज का ज्यादा एहतमाम करें, फिर सुन्नतों का, नफिल का, क़ियामुल लैल का, उतर की नमाज, दुहा की नमाज वगैरह वगैरह नमाजों का हम एहतमाम करें। ऐसे ही अल्लाह की राह में सदका करना, ऐसे ही रोजे रखना, और ऐसे ही दीन की रिफात के लिए हमें दीन के लिए तबलीग करना, लोगों को अच्छी नसीहतें देना, बुराइयों से रोकना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। अलमुहिम हर वो अमल जो और दिनों में मरगूब है, इन दिनों में इसका खास एहतमाम करना चाहिए। लेकिन चंद इबादतों की हम निहायत ही ताकीद के साथ वजाहत कर रहा हूं, जिन इबादतों में सबसे पहली इबादत अल्लाह ताला के लिए हज करना, और ऐसे ही उम्रा अदा करना, और इसके मुताबिक फजाइल हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में आप इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरी इबादत जिसका एहतमाम करना चाहिए, और आप गौर करें भाई, अगर हज के लिए नहीं जा रहे तब भी जहां कहीं है वहां अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। हाँ, आप हज नहीं अदा कर रहे, उम्रा के लिए नहीं निकल रहे, लेकिन और इबादत के दरवाजे तो बंद तो नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी इबादत जिसका एहतमाम करना चाहिए वो है रोजा रखना, बकसरत रोजा रखना इन दिनों में। मुस्लिम इमाम अहमद की एक रिवायत मिलती है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसूमु 9 दिल-हिज्जा व यौम आशूरा व कान यसूमु मिन कुल्लि शहरिन 3 अल-हदीथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिल-हिज्जा यानी 1 से 9 दिल-हिज्जा ये रोजा रखते थे, आशूरा के दिन रोजा रखते थे, और हर महीने में 3 दिन रोजा रखते थे। कुछ अहले इल्म ने इस हदीस के रोशनी में कहा कि 1 से 9 दिल-हिज्जा के अय्याम में रोजा रखना बहुत ही ज्यादा ये मुस्तहब है, जिस तरह कि इमाम नववी रहमहुल्लाह। लेकिन जो सही मसला है कि यह हदीस सही नहीं है, बल्कि यह हदीस मुनकर है, यानी ज़ईफ़ुन जिद्दन है। तो इस हदीस पर हम अमल नहीं कर सकते या इस हदीस का सहारा नहीं ले सकते। लेकिन जो और हदीसें गुजरी हैं, जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस गुजरी है कि इन दिनों में अल्लाह ताला को आमाल सालिहा इंतहाई पसंद और महबूब है, तो इस हदीस के रोशनी में रोजा भी एक निहायत ही बेहतर और अफजल अमल है। तो रोजों का एहतमाम करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना चाहिए। खुसूसन अगर आप हज के लिए नहीं निकल रहे हैं तो 9 दिल-हिज्जा के दिन आप रोजा रखें। सही इमाम मुस्लिम की रिवायत है, अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अरफा के दिन के रोजे के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युकफ्फिरु सनतल मादिया वल बाकिया, कि अल्लाह ताला इस दिन रोजा रखने से पिछले और अगले साल के गुनाहों को बख्श देता है। और एक दूसरी रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसियामु यौम अरफा अहतसिबु अल्लाह ताला अन युकफ्फिर सनतल लती क़ब्ला व सनतल लती बअदा, कि अल्लाह ताला से मैं उम्मीद रखता हूं कि जो अरफा के दिन रोजा रखता है कि अल्लाह ताला
ताला उसके पिछले साल के गुनाहों को बख्श दे और अगले आने वाले साल के गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का फजल और रहमत कितनी वसी है कि एक दिन रोजा रखने से 2 सालों का गुनाह बख्श देता है। हमारे भाइयों, इसमें सुस्त नहीं रहना चाहिए, सबकत हासिल करनी चाहिए और इस दिन का रोजा जरूर रख लेना चाहिए। भाइयों और मोहतरम साथियों, तीसरी इबादत जिसका एहतमाम करना चाहिए इन दिनों में वो है बकसरत तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और ऐसे ही तकबीर कहना। जिस तरह की इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वो हदीस गुजरी और मैंने शुरू में वो सुनाई और सही इमाम बुखारी में ये मौजूद है कि अबू हुरैरा इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये 10 दिलहिज्जा के अय्याम में बाजारों में निकलते थे और बाजारों में जाकर बुलंद आवाज में तकबीर कहते थे। उनको सुनकर बाजार वाले भी तकबीर कहने लगते थे, तकबीर पढ़ने लगते थे, यहां तक कि बाजार में तकबीर की आवाज, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हो जाती थी। ऐसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए जब निकलते थे तो अपने खैमे में मिना में तकबीर कहते थे। उनको सुनकर मस्जिद वाले भी तकबीर कहने लगते थे। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे मिना में तकबीर की आवाज गूंजने लगती थी। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मिना में ऐसे अपने खेमे में तकबीर कहते थे। उनको सुन के पूरे मिना वाले तकबीर कहने लगते थे और अल्लाह अकबर की सदा इस तरह पूरे मिना में गूंजने लगती थी। भाइयों और मोहतरम साथियों, ये तकबीर की सिफत तरीका ये है कि आप कहें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या शुरू में 2 मरतबा तकबीर कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 10 दिलहिज्जा के अय्याम में ये तकबीर मशरू है, तकबीर मुतलक है, यानी इसका कोई खास वक्त नहीं है। दिन में, रात में, घर में है, बाजार में है, बीच बीच में पढ़ते रहे तकबीर, आप कहते रहे। लेकिन गैर हाजियों के लिए यौम अरफा के दिन यानी 9 दिलहिज्जा के दिन फज्र की नमाज के बाद से लेकर आखिर अय्याम तशरीक यानी 13 दिलहिज्जा के अय्याम तक फर्ज नमाज के बाद वो फर्ज नमाज जो जमात के साथ अदा की जा रही है वो तकबीर कहना चाहिए। इसको तकबीर मुक़य्यद कहा जाता है। यानी 9 दिलहिज्जा की फज्र की नमाज के बाद से लेकर 13 दिलहिज्जा की असर की नमाज तक और जो हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम है वो अरफा के दिन तलबिया में मशगूल होंगे और फिर ऐसे ही यौमुन नहर 10 दिलहिज्जा बकर ईद के दिन वो फजर के वक्त वो मुज़दलिफा में होते हैं। लेकिन कंकरी मारने के बाद जब तक तलबिया खत्म होता है, कंकरी मारने के बाद तलबिया का वक्त खत्म हो जाता है, तो इस तरह वो भी बकर ईद के दिन ज़ुहर की नमाज के बाद से लेकर आखिर अय्याम तशरीक यानी 13 दिलहिज्जा के असर की नमाज तक वो भी फर्ज नमाज के बाद भी ये तकबीर वो कहेंगे। जमात के साथ जो फर्ज की नमाज अदा की जाती है वो भी सलाम फेरने के बाद फौरन ये तकबीर पढ़ना चाहिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तकबीर मुतलक का वक्त खत्म होता है बकर ईद की नमाज के साथ। भाइयों और बहनों, ये थी तीसरी इबादत। अब चौथी इबादत जिसका एहतमाम करना चाहिए वो है कुर्बानी। इधर जो कुर्बानी से मुराद है वो हदी का जानवर नहीं, जो एक हाजी या एक मुअतमिर जो मक्कतुल मुकर्रमा में ज़बह करता है वो तो हदी है। ये कुर्बानी है जो आम मुसलमान जहां कहीं होते हैं और बकर ईद के दिन जानवर ज़बह करते हैं और ये इसको कुर्बानी कहा जाता है या अरबी में उज़हिया कहा जाता है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है जो इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है कि मा अमिल इब्नु आदम अमलन खैरन लहू मिन इराक़ति दमिन फी यौमिन नहरी, कि आदम के बेटे ने बकर ईद के दिन खून बहाने से यानी कुर्बानी अदा करने से बेहतर कोई और अमल नहीं किया है। अल्लाह अकबर, ये सबसे बेहतर और अफजल अमल है। अल्लाह ताला उस जानवर के बदले में, उस बकरी के बदले में, उस बकरे के बदले में एक एक बाल और ऐसे ही उसके जो सींग है उसके बदले में अजर और सवाब जजील अता करेगा।
ایسے ہی بھائیوں اور بہنوں، جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا تو اسے چاہیے کہ بال اور ایسے ہی نہ ناخون تراشے، نہ بال چھلائے، نہ بال کٹوائے، نہ ناخون تراشے، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ اگر ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی یکم ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو وہ نہ اپنے بال کو چھلے یا چھوٹا کرے، نہ ایسے اپنا ناخون تراشے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا۔ اگر ایک شخص نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا، استطاعت نہیں ہے مثلا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بمعنی وہ اپنا بال چھوٹا کر سکتا ہے، منڈوا سکتا ہے، ناخون تراش سکتا ہے۔ اور اگر بیچ میں اس نے ارادہ کیا، مثلا 5 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، تو ارادہ کرنے کے بعد اسے بھی چاہیے اب اپنا بال پکڑ لے، یعنی بال اب نہیں کاٹے، نہ منڈوائے، نہ ناخون تراشے، یہاں تک کہ اپنے اس جانور کو، ذبیحہ کو وہ ذبح کر دے قربانی کے دن، بقر عید کے دن۔ ایسے ہی بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ادھر واضح کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، یعنی باپ کے لیے ہے جو گھر کا خرچہ چلاتا ہے، جو اپنے پیسے سے اس نے یہ بکرا خریدا یا اس بکری کو اس نے یہ خریدی، اس کے لیے حکم ہے۔ لیکن اس کے جو کفالت میں، زیر نگرانی میں جو بیوی ہے، بچے ہیں، جو الگ کمائی کر کے قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ وہ اس طرح ناخون تراش سکتے ہیں اور بال بھی منڈوا سکتے ہیں یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یہ بھائیوں رہی بات قربانی، اور اس کے بعد پھر 5واں جو عمل جو یہ 10 ذی الحجہ کے ایام میں ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے بقر عید کی نماز ہمیں مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ اور یہ عید کی جو نماز ہے، جو صحیح جو مسئلہ ہے، ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرو اور اسی کے لیے جانور ذبح کرو۔ کچھ اہل علم نے کہا ادھر نماز سے مراد صلاۃ العید ہے یا بقر عید کا دن ہے یا بقر عید کی نماز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَانْحَرْ، جانور ذبح کرو۔ یہ بھائیوں چند اہم اعمال تھے جو 10 ذی الحجہ کے ایام میں ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام 10 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، یہ سال کے تمام ایام میں سب سے بہتر اور افضل ایام ہیں۔ چاہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، مکہ میں ہیں، مینا میں ہیں، یا ایسے ہی اپنے وطن میں ہیں، آپ کو چاہیے اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان ایام میں اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم سبھی سے تمام قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔